तो यार उसमें से आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि तकरीबन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही है। अगर टोटल 8 चैप्टर हैं तो छोड़ के करेंगे क्या आप? ये भी तो एक चीज है ना। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आज ये चैप्टर 5 की बात करें तो इस पे ग्लोबलाइजेशन का हम डिस्कस करेंगे। ये ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आपके ऐसे में भी आया हुआ है। सो यू डोंट हैव मच, बेसिकली यू वुड कीप योरसेल्फ एज disadvantageous positions. I don't think so. You need to go for selective study. So as such, there's no any technicality involved if you are more aware of the term that what do you mean by it. So you have to explain by yourself. That is the only technique, and you have to give much examples as much as you can do it. So, Sharos. Okay. जी जिशान साहब, any question जिशान? अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड टू सी यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 5 है वो है जेंडर एंड डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, बाय द वे? व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? रोल्स, एक्सीलेंट। रोल्स ऑफ व्हाट? रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये मेरा ख्याल मैंने आपको करवा दिया था इसका। चलें ये मैं, हाँ आई थिंक सो हमने ये कर लिया था। ठीक है, ओके ओके। जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं चैप्टर 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सो यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, कि 2016, 17, 17, 18, 19, 19, 19। अब 19 में देखा जाए तो ये 3 क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। ठीक है, और 20 में कॉलोनियल एरा पे आया हुआ है, 21 में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे आया हुआ है, 21 में क्रिटिकल। ठीक है, ओके। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, मैंने जानबूझ के इस पे ज्यादा ज्यादा कंटेंट नहीं डाला, क्योंकि आप ना फिर वो लेक्चर पे फोकस नहीं करते। तो आज के लेक्चर में मैं ज्यादा बोलूंगा। मैंने स्पेशल आपके लिए ये फिर स्लाइड्स बनाई हैं बड़ी शॉर्ट सी, ताकि यू वुड रिमेन वेरी अटेंटिव हियर। क्योंकि सारा कुछ स्लाइड पे आ जाए ना, फिर आप बॉदर नहीं करते टीचर की तरफ। ओके एनीहो, सो अगर हम इसकी बात करें जेंडर एंड डेवलपमेंट, सो जेंडर एंड डेवलपमेंट देयर आर 2 पर्सपेक्टिव। एक तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है और दूसरा कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म, बाय द वे? आयशा बासी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म? Physically control some state when nation subjugate other nation by using, excellent Zishan साहब। ठीक है, कि basically you are going to control through external resources। ठीक है, ओके। अगर हम colonialism की बात करें तो colonialism में आप सिचुएशंस को, जो जेंडर के रोल्स हैं, क्योंकि देखिए ना इसमें दोनों में हमने जो चीजें पढ़नी है वो रिलेटिंग टू जेंडर रोल्स हैं, जेंडर अपॉर्चुनिटीज हैं। So what do you think in colonial perspective, what were the opportunities which were available to various genders? कि जो different sexes थे, उनके पास क्या क्या opportunities थी? मेल के पास क्या opportunity थी during the colonial perspective? What do you think? Okay, excellent, शाबाश साकिब। हम कहते हैं कि there was a marginalization of women. So women, they were going to be subjugated. Men, they were going to be considered master of their women. So when you're talking of a colonial perspective, so basically you are going to rely more on the physical efforts, and in colonial perspective, men, they were going to be considered their strength, okay, and they were going to take control of their defense. And when you're talking of outdoor activities, so they were purely linked with the men, and the women, they were supposed to take part in domestic affairs. And in colonial perspective, as such, there is a no, you can say you are going to support the patriarchy, and there was a no much literacy rate,
And overall, there was such fear that was going to be propagated that if a women they are going to come out of their home, they were going to be targeted for sexual violence or something like that. So as such, in a colonial perspective, there is a clear-cut division that this is a breadwinner role, this is a homemaker role. Breadwinner that was going to be probably linked with the men, and homemaker that is going probably linked with the women. When you're talking of a political opportunity, so again, political opportunities, they were more linked with men rather than women. Okay. And that was an overall clear-cut, you can say, demarcation of role in a colonial perspective. But still, there was some sort of exception. They were still existing. When you're talking of a men who belong to lower class, still they were performing their role, and you can say they were going to get more engaged in domestic affairs as well. Similarly, when you're talking of women who belong to lower classes, still exceptions were existing, and women who belong to lower classes, they were going to get more engaged in agricultural field as well in order to take care of their homes, because they were having no other source of income. Similarly, when you're talking of women who belong to upper classes, they are going to take more part in political opportunities as well. So we can say in a colonial perspective, there was a clear-cut division of roles. There's something that's specific for male and specific for female. नीलमा सर हम आपकी स्पीड कुछ हैं स्पीड ज्यादा है अच्छा आई एम सॉरी चलो ओके तो हम कहते हैं कि जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उसमें जो वुमेन थी ऑल्दो कि उनका रोल घर तक था लेकिन उसमें एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर रही थी लोअर क्लास वुमेन में और अपर क्लास वुमेन में ठीक है कि जो लोअर क्लास की फीमेल्स थी वो अपने इसमें फायरवुड के लिए और सम अदर चीज़ों के लिए उनको नहीं अंजना करो साकिब साहब उन्होंने बड़ी अच्छी आंदी है तो उसमें जो था मैं आपको पता नहीं बता क्या रहा था मुझे आपने बुला ही दिया हम पढ़ क्या रहे थे वैसे कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे ओके तो एक्सेप्शंस दे वर एग्जिस्टिंग इन अपर क्लास एज वेल एज इन अ लोअर ठीक है चलें अब आ जाते हैं कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म चलें नीलमा आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज कैपिटलिज्म ये नीलमा मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है आपने एक्सेप्ट नहीं करनी चलें कैपिटलिज्म जो है गेट व्हिच इज सैयद ज़ीशान साहब आई अप्रिशिएट दैट इज आउटकम दैट it is going to create a gap between haves and haves and not. शाबाश इकोनॉमिक सिस्टम का क्लास by private ownership and free market concept excellent डॉक्टर साहब ठीक है यार आप तो बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो सारे आपकी तो चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं अब ठीक है so in other words you can say when you're talking of capitalism so concept of free market laissez-faire principle the state would act as a regulator and state is going to act as a supervisor, but as such, when you're talking of ownership, that would be just linked with the individuals, private individuals. What do you mean by private individuals? For example, if Yasser wants to establish an industry in his own name, Yasser can do it. And if Dr. Abdullah is going to establish 3 or 4 lavish hospitals, he can do it in his own name. And if Habib is going to import some cars and he's going to take ownership of those cars, he can do it. So basically, ownership is associated with the private individuals. Yes, you're right. Okay. तो क्योंकि जो कैपिटलिज्म है कैपिटलिज्म में आपका ओवरऑल 3 सिस्टम है ना अपने इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म कम्युनिज्म और सोशलिज्म तो कैपिटलिज्म में क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स के पास ओनरशिप होती है और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली दे वांट टू हैव मोर रिटर्न ऐसे ही है तो कैपिटलिज्म में obviously you need to increase more your rate of return and you need to increase your production on the basis of which women they are going to be given more opportunity to be part of such system as well. So in a capitalistic perspective, women they were given access to public roles. Yes, that is just for the sake of profit maximization of upper class. Yes, you're right. Okay.
तो जिसमें women को access तो मिल जाती है, but still women they are not free from certain challenges. So in capitalistic perspective, women they face different challenges. For example, in terms of acceptance of their role as administrator, in terms of their promotion, in terms of their wages, in terms of their maternity issues, and in terms of their protection of their dignity and protection of their life as well, because at the same time they were going to face some issues of harassment, and they were going to be taken as a lower worker. So issues, they were different, but still they got some sort of independence as compared to colonial perspective. Is it clear? जी उमर साहब तुसी कुछ फरमाना चाह रहे हो? सोमन ने वो म्यूट कर लिया. ओके चलें, थैंक यू वेरी मच. ओके, when you're talking of a capitalistic perspective, so in capitalistic perspective there are different theories. Here you're going to analyze in terms of gender analysis of development theories. That in capitalistic perspective, basically why individuals they have been given more, you can say, independence, and why ownership and factors of production they are going to be taken by private individuals for the sake of development, for the sake of the progress of society. And when you're talking of the progress and development of the society, so basically there are various theories which are going to analyze individual role. First of all, there's a modernization theory, then there's a dependence theory, world system theory, then there's a dependence theory, and last, there is a structural functionalism theory, okay? When you're talking of a modernization theory, what do you mean by modernization? जी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उमर आप मॉडर्न बच्चे हैं तो आपका क्या आंसर? हम कहें कि आप बड़े मॉडर्नाइज्ड हैं, ये बड़ा मॉडर्नाइज्ड लड़का है, ये मॉडर्नाइज्ड लड़की है. व्हाट डज इट मीन? अप टू डेट. शाबाश. अप टू डेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय अप टू डेट? ये हम कहें ये बड़ा एडवांस, हम कहें कि ज़ाहिरा बड़ी एडवांस है, तो इससे क्या मुराद लेते हैं आप? डिमांड ऑफ आवर. उबैद मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें. उबैद बुखारी. चेंज विद द चेंजिंग सिनेरियो. यार आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते. चलें छोड़ें, ना बोलें. ओके, तो जब हम मॉडर्नाइज की बात करते हैं तो मॉडर्नाइज मीन्स रैशनलाइजेशन, ठीक है, कि इन टर्म ऑफ लिबरल थिंकिंग. लिबरल थिंकिंग मीन्स इन टर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो मीन्स वो रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लिबरल थिंकिंग की तरफ जाएंगे. स्टेजेस की हम बात करेंगे जिसकी दो स्टेजेस हैं, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज और दूसरी है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज. जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मॉडर्न फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि पहले जो पब्लिक रोल था, पब्लिक रोल सिर्फ मेन के साथ एसोसिएटेड था, ठीक है. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में वुमेन के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना और वुमेन के रोल को एक्सेप्ट करना फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज. सेकंड इज अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज. पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में जिसमें आप लिबरल, you are going to show your liberal thinking, you are going to show more flexibility, and you are going to lose your rigidity in terms of giving control over their lifestyles. ठीक है, lifestyles में कि आपने कौन सा occupation रखना है, आपने कौन सी ड्रेसिंग रखनी है, आपने कौन सा अपना गेटअप मेंटेन करना है, और how you are going to express yourself in society. That is a post industrialization phase. ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज में ये आपके फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग पैटर्न्स में चेंज आना, आपके ऑक्यूपेशंस में चेंज आना, ठीक है, एंड ऑल दिस, दैट इज द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज. इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन द स्टेजेस ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? थैंक यू वेरी मच. सही है साहब. Okay, the next is a process of a modernization. Okay, या modernization theory के अगर हम process की बात करें तो जब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर? इसका प्रोसेस क्या होगा? तो हम कहते हैं कि जब इसकी प्रोसेस की अगर हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रोसेस है
उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो चेंज आती है वो चेंज आती है आपके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है, उसमें अपडेशन होती है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लेक्चर थ्रू डिजिटल लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है। फिजिकल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएगी, और उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा इन टर्म ऑफ थिंकिंग, कि मॉडर्नाइजेशन इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मॉडर्नाइजेशन इन टर्म ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस भी है, ठीक है। तो ये दो तरह के इसके प्रोसेस होते हैं, और ये हम वो वर्ड भी यूज करते हैं ना सोशियोलॉजी में कि मटेरियल चेंज और नॉन मटेरियल चेंज। मटेरियल चेंज में ये आ जाएगा कि आपका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज, नॉन मटेरियल में आपकी थिंकिंग, आपकी वैल्यूज, आपका कल्चर, कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। और जब दोनों चीजों में इम्बैलेंस होता है मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है कल्चरल लैग। बट राइट नो यू डोंट नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस टर्म। जी शाबाश, दैट इज अ कल्चरल लैग। ओके, तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की वो प्रोसेस की बात करें तो वो इस तरह से होगा। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग दैट हाउ मोर चेंज दैट इज गोइंग टू बी कैरिड आउट in your non-material culture in terms of your thinking, why you say you need to show more flexibility towards the roles of other individual, why you need to accept roles of other irrespective of his or her sex. So that which institutions can play a very important role. The first of all, you can say educational institution, they play a very important role, and the second institution that play a very important role, that is the media. Okay, तो इन इंस्टीट्यूशंस को उसमें ज्यादा रोल आपको नजर आता है। फिर अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसमें जो वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो बेसिकली दैट गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम फैमिली। कि सबसे पहले जो आपकी थिंकिंग है कि हाउ टू बिहेव, कि मेल का क्या रोल होगा, फीमेल का क्या रोल होगा, आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो यू आर गोइंग टू टेक स्टार्ट all you need to take start from family. ओके, स्टेजेस मेरे ख्याल मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि मॉडर्नाइजेशन किस तरह से आती है, तो हम कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज, तो इंडिविजुअल्स के पास सबसे जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन टर्म ऑफ पैरिटी, दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज। So basically, you are going to divide into various stages. There's underdeveloped stage and preconditions to take-off stage, and take-off stage, drive to maturity stage, and development stage. So when individuals, they're going to face more inequality, that is under underdeveloped stage. And then to some extent, individuals, they're going to have a better facilities when they move from underdeveloped stage to preconditions to take-off stage. Things they get more better when they move to take-off stage, and things they have more improvement when you move to drive to maturity stage. Finally, you are going to achieve a stage that is a development stage where all individuals, they are going to enjoy equal opportunity. शोर क्यों हो रहा है? अच्छा नहीं हो, सायरा रऊफ स्लो। अच्छा यार, वो मुझे था कि चले ये आसान ही है, मैं तो इसकी थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा था। किसका माइक ऑन है? तो किसी का भी नहीं। साहब तनोली, साहब तनोली का माइक भी आप चले। ओके, वैसे साहब तनोली ने पिक्चर में भी ना फोन कान के साथ लगाया हुआ, आई थिंक सो। एनीहो, तो हम कहाँ पे थे? चलें अरशाद साहब, थोड़ा सा लेक्चर अच्छी रहा बहुत। ओके, एनीहो, तो हम बेसिकली थे ओके जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, हम बड़ा स्लो पढ़ेंगे, कोई स्पीड नहीं है, हम मारेंगे, ठीक है। तो अंडर डेवलप स्टेज क्या होती है? अगर हम अंडर डेवलप स्टेज की बात करें, अंडर डेवलप स्टेज वो स्टेज होती है
जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यार छोड़ें उमर साहब, डोंट वरी, आप देखिए, आप आपस में मत लड़ाई करें। आई अप्रिशिएट उमर दैट इफ यू कैन मेंटेन दैट पेस, लेकिन वी हैव टू टेक अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। तो वी नीड टू बी मोर डेमोक्रेटिक, इसलिए हमें हर एक का जो ओपिनियन है उसको वेटेज देनी चाहिए और उसको वी शो रेस्पेक्ट, ठीक है। तो डोंट टेक इट पर्सनल। चलें यार, देखिए हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, हम इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे तो वो मॉडर्नाइजेशन किधर आएगी? मॉडर्नाइजेशन तो स्टार्ट ही टॉलरेशन से होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है कि हम दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। ओके, जो अंडर डेवलप स्टेज है, अंडर डेवलप स्टेज ये स्टेज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर इंडिविजुअल्स अपने जो रोल हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं थ्रू द डिक्टेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो दैट इज द अंडर डेवलप स्टेज, ठीक है। मसलन आपने ये लेक्चर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको यू हैव टू डू अ सीएसएस, दैट इज अ फैमिली रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप लोगों ने क्योंकि उसमें फी पे की हुई है तो इसलिए आपको लेक्चर लेना है, तो उसको हम कहेंगे अंडर डेवलप स्टेज। जब इंडिविजुअल्स के पास ये डिसीजन नहीं होता कि वो अपनी मर्जी का डिसीजन ले सके, ठीक है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल फीमेल की ड्रेसिंग की बात करें या फीमेल की हैबिट्स की बात करें, उनकी हॉबीज की बात करें, उनके स्पोर्ट्स की बात करें, क्यों उनको वो जस्ट इंडोर एक्टिविटीज में प्ले करना पड़ता है? क्योंकि उनको फैमिली की रिस्ट्रिक्शन, दैट इज अंडर डेवलप्ड स्टेज। जब आपके इंस्टीट्यूशंस दे बिकम डोमिनेंट इन शेपिंग योर रोल, देन इट वुड बी अंडर डेवलप्ड स्टेज। इंडिविजुअल्स हैव नो फ्रीडम to adopt any role up to their own choice, that is an underdeveloped stage. Is it clear? Yeah, Anis, आपने कहा occurrence, what do you mean by occurrence? चलिए इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड आ जाएगा प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज। प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें इंडिविजुअल्स के पास थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती है और इंस्टीट्यूशंस का रोल थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल हम रहीला की बात कर लें, रहीला चांद की, ठीक है। कि जो रहीला है, अगर रहीला का सीएसएस हो जाएगा और रहीला जो है वो अपनी टॉप रेफरेंसेस में आ जाएगी, तो आपको लगेगा कि रहीला फिर भी रोटियां बनाएगी और रहीला जो है सुबह उठ के पहले अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाएगी, फिर उसको ऑफिस में फिक्र होगी कि हो मैंने अपने हस्बैंड को लंच नहीं अभी भेजा। डू यू थिंक सो? नॉट एट ऑल, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब ये इसको हम कहते हैं प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज, ठीक है। कि जब आपके पास, अच्छा आयशा, वैसे जेड़े कहते ना, बिल्कुल बनाना है ना, बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी आयशा की अपोजिट स्टेटमेंट है जिसकी पर्सनालिटी की। ओके, तो ये जो है प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज, क्योंकि लास्ट टाइम आयशा जो है ना बड़ा गन्नों का जिक्र कर रही थी, तो ये साथ खाना लेके आएगी, साथ गन भी लेके आएगी कि जैसा भी बना है यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज यू हैव टू टेक समथिंग एल्स। ओके, तो इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन टू टेक अप स्टेज, जिसमें दो फैक्टर्स आपको किसी हद तक इंडिपेंडेंस देते हैं। एक तो है कैपिटल और दूसरा है टेक्नोलॉजी। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, ठीक है, और आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम वो उसको गेन कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू व्हाटएवर यू लाइक। तो ये जो स्टेज है जिसमें आपके पास पैसा आ जाए या टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी वजह से आपके रोल्स में फ्रीडम आ जाए, इट इज नोन एज प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज। ओके, थर्ड स्टेज कौन सी होती है? टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज है when you move from extended family system to nuclear family system, then you get some independence and you feel yourself free in performing certain roles. This is known as a take-up stage. ठीक है, और take-up stage की समझ आ गई? What do you mean by extended family system or what do you mean by nuclear family system? Anybody please? जी फवाद, आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? फवाद इकबाल, आप अनम्यूट हैं ना? फवाद, आप एक्सप्लेन करेंगे? फवाद साहब,
चले, फवाद लगता बोलते ही नहीं है, चले उसने साथ ही अनम्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट कर दिया, ये मैं दोनों को कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ म्यूट अनम्यूट पर। एनीहो, शाबाश, एक्सलेंट। जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। जब आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो वो पेरेंट्स विद 1 or 2 चाइल्ड। अच्छा, आप में से कोई एक्सप्लेन करे कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में इंडिविजुअल के पास क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है? बाय द वे, व्हाट वुड बी द रीजन? ओके, हम कहते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके पास बेसिकली देयर इज नो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखें ना कि अगर आप 10 बंदे भी हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा है, कि फॉर एग्जांपल वो फादर है या वो आपका ग्रैंडफादर है, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कुछ कमाते हैं या नहीं कमाते, एक बंदा कमाता है, 20 बंदे खाते हैं, दैट इज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जो कमाता होगा बात भी तो उसी की चलेगी ना, या ओवरऑल जो फैमिली में बड़ा होगा, जिसकी वजह से आपके पास फ्रीडम नहीं होती। ठीक है, when you move from extended family system to individual family system, nuclear family system, जिसमें इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, इंडिविजुअलिज्म में आप में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, वैसे बाय द वे, जब मैं म्यूट कर आपको अनम्यूट करता हूं तो आप होते नहीं है, अपने आप खुद हो जाते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? ओके, तो मैं अभी हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम शायद बता रहा था आपको। ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जो है, उसमें आपके पास जो है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सर्वाइवल की बात आ जाती है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन, अदरवाइज बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट मोर ऑन अदर्स। तो जब उसमें वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आ जाती है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई योर रोल इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इनकम, इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर मीन्स, और ऑटोमेटिकली आपके जो रोल्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आ जाएगा, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है व्हेन यू मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। जिस तरह एक कंट्री है वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, और जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनते हैं, क्यों? बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट, एंड यू वांट टू इंक्रीज योर कंजम्पशन वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, तो जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग तरफ आते हैं, आपका मार्केट साइज जो है दैट बिकम्स ग्रेटर, जिसके लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है, और प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए यू नीड मोर लेबर पावर, और जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल्स को जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स के पास इंडिपेंडेंस आ जाएगी। लास्ट स्टेज वो होती है दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज वो स्टेज होती है, इसमें देयर इज अ मोर पैरिटी हियर इन डेवलपमेंट स्टेज, और इसमें ऑल इंडिविजुअल्स दे प्रेफर टू लिव in urban areas and they have equal access to education, health and many other facilities as well, and that is the urban stage। ठीक है, कि जिसमें आप जो है वो urban life को prefer करते हो, और इसमें there is a more literacy rate as well। So basically आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो inequality है that is in underdeveloped stage, उसके बाद preconditions, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और उसके बाद क्लियर। दैट इज अ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मीनिंग क्या है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के स्टेजेस क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, और उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं मॉडर्नाइजेशन में। दैट्स ऑल अबाउट दिस। अनीस, अक्रंस की बात ये है कि ये जो लिबरलाइजेशन है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इन योर थिंकिंग है, दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर फैमिली। बेसिकली आप अपनी फैमिली से लर्न करते हैं ना कि व्हाट इज द रोल फॉर मेल, व्हाट इज द रोल फॉर फीमेल, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर। So that जी, शोर इज कमिंग, ये शोर कमिंग मेरा ख्याल शहरोज से आ रहा था, तो उसको हमने बंद कर दिया। ही वाज एट दैट टाइम। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल आपके शोर की वजह से होस्ट ने मुझे भी म्यूट ही कर दिया था।
Now clear? Okay, thank you very much. ओके, सेकंड जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी वर्ड सिस्टम थ्योरी। ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो जब आप वर्ड सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं तो वर्ड सिस्टम थ्योरी के ओवरऑल वर्ड को आप किस तरह से लिंक करते हैं? तो मोस्टली आप उनको डिवाइड करते हैं कोर कंट्रीज, पेरिफेरल कंट्रीज और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। कोर कंट्रीज कौन से कंट्रीज होते हैं बाय द वे? मोहम्मद यासर, यासर चले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। शाबाश, आई अप्रिशिएट यासर। सर आवाज आ रही है? जी जनाब, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। Sir, this theory was propounded by Emanuel Boston, and this theory established a three-level hierarchical structure consist of core countries as well as semi-periphery countries and periphery countries. According to this theory, core countries are those countries which are highly developed, and specifically the capitalist countries, like we can take the example of US, France, and UK. They are highly industrialized. They are economically and militarily powerful country, they have control over the world economic market as well. और उसका जो focus होता है specifically their focus are on higher scale and as well as a capital intensive production. So sir, they are highly industrialized, so they exploit the semi-periphery and as well as periphery countries. The semi-periphery and periphery countries provide them with raw material as well as with cheap labor. So second sir आता है, and their government is always very efficient bureaucracy and as well as central and strong government उसके होते हैं. सर इसके बाद हमारे पास आता है semi periphery countries. It is a kind of buffer zone between the periphery and the core countries. सर इसमें वो होता है कि their government is better than that of the periphery countries government, and they are militarily and economically better than the periphery but less than the core countries. और इसमें जो होता है इसकी industrialization होती है, लेकिन it is not that much developed like the core countries. So they are exploiting for raw materials the semi-periphery countries for as well as for cheap labor. और ये countries जो है semi-periphery core countries are exploiting them. तो इसी तरह सर जो लास्ट होते हैं हमारे पास periphery countries है. Periphery countries are like the poor countries. We can take the example of Pakistan, Afghanistan, Nepal, etc., Sri Lanka. They are only providing the raw material because they do not have their own industries, or their government is not efficient. They are very weak economies. So ये countries है, they provide materials for the semi-peripheries, raw material and as well as cheap labor to the core countries as well. और वो core countries में जो finished product होते हैं इसकी ही materials, raw materials, they are again selling back to these countries. तो इसी तरह एक unequal structure सर मतलब कि बनाया गया है ये theory. This theory deals with such a kind of things. Thank you very much, yes sir. I really appreciate for your deep analysis. So fantastic. Okay. Okay, अगर हम बात करें कोर कंट्रीज की, तो कोर कंट्रीज मींस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन से होते हैं या डेवलप कंट्रीज कौन से होते हैं? जिनकी इकोनॉमी बेहतर होती है, ठीक है, जिनके मिलिट्री स्ट्रेंथ बेहतर होती है. इकोनॉमी क्यों बेहतर होती है? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास होती है. टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा? उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा? उनका जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा. मार्जिनल प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा? उनकी ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी. जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है? कि they can spend on education, they can spend on health, they can spend on other services as well. So they are going to show more concern for the welfare of individuals. जब वो इंडिविजुअल्स पे वेलफेयर करेंगे तो इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और देयर वुड बी मोर लिटरेसी रेट. जब लिटरेसी रेट ज्यादा होगा तो देयर वुड बी रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ जब होगा तो ऑल इंडिविजुअल दे वुड बी टेकन इक्वल अपॉर्चुनिटी. जब इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी तो दैट वुड बी जेंडर पैरिटी. इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय कोर कंट्रीज? ओके, थैंक यू वेरी मच. फिर आ जाती हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज. पेरिफेरल कंट्रीज अपोजिट ऑफ कोर कंट्रीज, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली दे आर रिलाइंग मोर ऑन
रॉ मटेरियल उसके एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, और वो बेसिकली जो है क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी एंड दे आर लैकिंग इन वैल्यू एडिशन, रिजल्टेंटली देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, उस ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से दे बिकॉज दे आर रिलाइंग मोर ऑन इंपोर्ट रादर देन एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से उनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी चलता है। तो जब उनका ये सारी इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे तो इट मींस दे वुड बी हैविंग स्लो ग्रोथ रेट। ठीक है, उनका जीडीपी इतना अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेंगे। जब इंडिविजुअल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एजुकेशन इज गोइंग टू मोर कॉम्प्रोमाइज, जिस तरह पाकिस्तान है। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इट मींस यू आर गोइंग टू सपोर्ट पैट्रियार्की। जब पैट्रियार्की होगा automatically you are there is a weak enforcement of regulations as well, so there is a bad governance. जब bad governance होगी तो there would be no rule of law. No rule of law means कि आप individuals को equal opportunities नहीं दे रहे और उसमें there is a more gender disparity. ठीक है, जो semi peripheral countries होते हैं like a developing countries, their situation is not more ideal as poor country, but the situation is not going to get more worse when you compare with the peripheral countries. So basically they are in between poor countries and peripheral countries. So yes, you can take example of Pakistan as well. When you're talking of Islamabad, maybe you're going to have a good treatment of genders. When you're talking of a FATA, when you're talking of Balochistan, maybe you're going to take situation worse like Afghanistan. So you are going to see mixed situation here like poor and peripheral countries. Clear? Thank you very much. Okay, next जो टॉपिक है आपका, जो सेकंड थ्योरी है कैपिटलिज्म में ही, दैट इज अ डिपेंडेंसी थ्योरी। यासर साहब इसको भी आप यासर साहब आपने आईआर रखा हुआ है ना? जी जी, यासर साहब आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हैं, तो मुझे ये बताइए आपने आईआर रखा हुआ है? नहीं सर, मैंने याद नहीं। अच्छा चले, डिपेंडेंसी थ्योरी आती है, क्या होती है? हाँ सर, डिपेंडेंसी थियरी इट वाज प्रपोज्ड बाय इम्यूनल प्रिविलेज, इसी तरह का नाम है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में सर। लैटिन अमेरिका के लिए एक यूएन का कमीशन था, उसमें इस थियरी को प्रपोज किया गया था, और इस थियरी के मुताबिक इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड सर। और ये थियरी, द डिपेंडेंसी थियरी आर्गूज दैट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी are the root cause of such disparities between the developing world and the developed world। और वो developing world के लिए third word भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि जो capitalist world है उसने economic arrangement इसी तरह किया है कि that always exploit the poor nation or the developing or the third world nation। और साथ साथ वो ये भी कहता है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, ये तो सर रिसेंट स्टडी ये कहते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF, लाइक द वर्ल्ड बैंक, लाइक द FATF, they are also serving like the same cause of the capitalist world। तो इसी तरह एक disparities है economic system में world में सर। this theory deals with such a kind of issues। चले, थैंक यू वेरी मच, शाबाश। सैयद निशान साहब, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं थैंक यू सर। सर मैं यासिर की बात बहुत अच्छी उसमें बताई है। मैं उसको जो है ना बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इस तरह से बताऊंगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को आपस में उनको सब्जुगेट इस तरह से करते हैं कि इनडायरेक्ट वे में उनकी सब्जुगेशन हो, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो उन पर डिपेंडेंट हो जाएं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पर, इसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं इन वेरी इजी वर्ड्स। यासिर भाई की बात को मैंने थोड़ा इजी करके बता दिया। हाँ शाबाश, ठीक है, एक्सलेंट, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी में हमारा जो फोकस होगा वो रिगार्डिंग जेंडर रिलेशंस एंड इनइक्वालिटी है। कि हमने ये तो कह दिया ना कि जैसे हम कहते हैं कि वर्ड 3 में है, पोर कंट्रीज, पेरिफेरल, सेमी पेरिफेरल, but it doesn't mean that they can live in an isolation, as man is a social animal that you cannot fulfill your needs and you're dependent upon other individuals. Likewise, one state cannot live in an isolation and one is dependent upon other states as well. So whenever you are going to come into a relationship with the state, so that relationship is basically one state with a passage of time that is going to depend more on other state as well. Not necessarily that for economic interest you are dependent. For other relations you can also come into contact with other states as well.
तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये बेसिकली आपका जो सबऑर्डिनेशन है और डोमिनेशन है उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। ओके, अब एक तो जब हम ये डोमिनेशन और इसकी डोमिनेशन की या जो सबमिशन की हम बात करते हैं, तो उसमें जो नेचर ऑफ अलायंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी गवर्न, नॉट नेसेसरली ऑल द टाइम। Whenever you are in a relationship, it result in exploitation. That's not the case. It depends on the situation through which you are going to govern that relationship. So in some cases it could be beneficiary, but in some cases it would be very destructive as well. Okay, second thing is important, that what are the economic and the political arrangements. ठीक है, कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान डिपेंड करता है यूएसए पे, तो क्या पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है यूएसए पे इन टर्म ऑफ ट्रेड, क्या दैट इज गोइंग टू बी ओवरकम विद द पासेज ऑफ टाइम? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम जब एक कंट्री दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है तो सिचुएशन उस टाइम बेनिफिशियरी होती है when they are on equal terms in terms of technology. It is very important that who is going to reduce cost of production in that relationship. तो क्योंकि जो डिपेंडेंट होगा, ऑब्वियसली नीड्स तो दोनों की होती है ना, एक को एक्सपोर्ट करना होती है, एक को इंपोर्ट करना होती है, व्हाटएवर, लेकिन उसमें वो जो रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप में टेक्नोलॉजी में अगर कोई एक वीक होगा तो वो उस रिलेशनशिप में इक्वल बेनिफिशियरी नहीं रहता। द सिचुएशन इज नॉट अ विन विन सिचुएशन, ठीक है, जिसकी बेस पे फिर उसकी जो डिपेंडेंस है जो वीक है, उसकी डिपेंडेंस जो पावरफुल है या जो डोमिनेटेड है, उसको उसकी वीकनेस जो उसकी जो डिपेंडेंस है दैट इज गोइंग टू बी हाई विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, अगर उसकी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी तो इट मींस उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो नहीं हो पाएगा, और उसकी जो इकोनॉमी है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस नहीं होगा तो आपकी जीडीपी नहीं होगी, जीडीपी नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्पेंड ऑन इंडिविजुअल वेलफेयर। जब आप इंडिविजुअल वेलफेयर स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो इंडिविजुअल में कि वो जो डिपेंडेंट कंट्री है उस पे बेसिकली जो इंडिविजुअल्स उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, और अगेन यू आर गोइंग टू सपोर्ट अ पैट्रियार्कल थिंकिंग एंड सो ऑन, ठीक है। और वो कंट्री जो कि उस रिलेशनशिप में ज्यादा बेनिफिशियरी है, उसकी क्योंकि ग्रोथ अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल वेलफेयर पे भी स्पेंड करेगा, वो इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा। ओके, सेकंड जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। पॉलिटिकल अरेंजमेंट मींस कि व्हेन कंट्रीज दे आर गोइंग टू कम इनटू अ रिलेशनशिप थ्रू अ ट्रेड, ठीक है, अब उसमें जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल IMF, वर्ल्ड बैंक, ओके, एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे एक्ट एज अ यू कैन से सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन। अब ये जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स है, अगेन दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द डोमिनेंट कंट्री एंड दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द वीकर कंट्री। कि फॉर एग्जांपल अगर हम IMF की बात करते हैं तो IMF की जो कंडीशन है फॉर डेवलप्ड कंट्री और फॉर द डेवलपिंग कंट्री इन टर्म ऑफ टेकिंग अ लोन, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अगर आप WTO की बात करें तो WTO जो है दैट इज गोइंग टू टॉक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है, दैट इज गोइंग टू सपोर्ट मोर फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड कैसे होगी? यू हैव टू रिड्यूस योर टैरिफ। जब आप टैरिफ कम कर देंगे तो उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान उसको होगा जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप चीज़ों पे टैरिफ खत्म कर दें कि चीज़ें चीप आनी चाहिए। कि हम कहते हैं जी कि जब एक चीज़ चाइना से आपको सस्ती मिल रही है तो भाई आपको पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? चाइना से इम्पोर्ट कर लो। अगर आप हर चीज़ चाइना से इम्पोर्ट करेंगे तो वो चीज़ सस्ती तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों को रोजगार मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। आपकी जो अपनी इंडस्ट्री थी वो भी बैठ जाएगी, उसमें ज्यादा बेटरमेंट नहीं आएगी, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, सम अदर इश्यूज एज वेल। ओके, तो जब इस तरह के पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स होते हैं तो उस पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स में जो वीकर है उसको फायदा नहीं होता। जब वीकर को फायदा नहीं होता तो वीकर की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अगेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाएंगी ड्यू टू इलिटरेसी, ड्यू टू द बैड गवर्नेंस, ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ड्यू टू मोर अथॉरिटेटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ड्यू टू you can say lack of enforcement of rule of law and some other factors. So that's all about this. Okay, so that's a gender issue. Okay, फिर जब हम gender issues की बात करते हैं तो वो कंट्री जो कि उसमें ज्यादा बेनिफिशियरी है वहां पे इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन है, दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर लाइफ, दे आर गोइंग टू हैव मोर हाइजेनिक कंडीशंस,
और जो वुमेन भी होंगी उनके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, उनका जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बेहतर होंगे, एजुकेशनल इश्यूज भी बेहतर उनके नहीं होंगे, बेसिकली बेहतर क्या होने, एजुकेशनल इश्यूज उनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और उनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा क्रिएट होंगी। और अगर हम बात करें वो कंट्री जो कि उससे डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में जो उस पे वीकर है, तो वहां पे हम क्या कहें, जो इंडिविजुअल है दे वुड बी हैविंग ए शॉर्टर लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन भी कम होगा, और ऑटोमेटिकली अगर डिजीजेस की बात करें तो वो भी उनमें बड़ी ज्यादा होंगी, और उनके हेल्थ मसाइल ज्यादा होंगे, एजुकेशनल मसाइल ज्यादा होंगे। वो जो चैप्टर 6 और 7 पढ़ा है वो सारा यहाँ पे फिट कर दें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि आज के लेक्चर में ये जो स्लाइड्स में मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं रखा, इसका आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्योंकि अगर स्लाइड्स में बहुत कुछ हो जाए ना तो फिर भी आप वो लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते। आपको होता है कि ये स्लाइड सामने आ रही है, आप उसके ना स्क्रीन शॉट लेते रहते हैं। मुझे था कि जरा आज स्क्रीन शॉट लेके दिखाएं, क्योंकि आज तो इसमें ज्यादा कंटेंट होगा ही नहीं। ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच। जी जी इमरान साहब, मैं आपको, मेरा ख्याल स्पीड हमारी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड और रिड्यूस कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चले, ओके, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है कि जो इनक्वालिटी आपको सोसाइटी में नजर आती है, वो इनक्वालिटी जो है वो बेसिक, या ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना स्लाइड्स की, तो वो जो ग्रुप है वो बेसिकली 267 टू 69 ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए वो आपका नहीं था, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। When I would teach them, I would definitely I would share in that group. Anyhow, चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स जो इनइक्वालिटी फेस करते हैं, वो इनइक्वालिटी फेस करते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी। ओके, अब फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है, नमाज ब्रेक करनी है, चलें फिर कर लें ब्रेक नमाज, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ प्रेयर ब्रेक। ये प्रेयर ब्रेक नहीं 20 मिनट्स की नहीं है, खुदा का खौफ करें, तरावी पढ़नी है आपने, ठीक है। आई थिंक इट वुड बी 5 मिनट और 10 मिनट्स, व्हाट डू यू थिंक? नहीं 10 मिनट है, कोई नहीं 15 मिनट, मैं तो 5 मिनट कहने लगा था। 10 मिनट ब्रेक। ओके ओके, सी यू आफ्टर द क्लास। अच्छा चलें 15 मिनट कर लें, ठीक है, ओके।
जी, welcome back. Should we start? Is everyone there? Okay, चलें. Thank you very much. तो next, अगर हम institutions की जब हम बात करते हैं कि जो individuals हैं, they're going to face inequality just because of the structures of a particular society. उसमें जो individuals हैं, they can be categorized into various types. कि जो individuals हैं, उनकी कौन-कौन सी type हो सकती है कि उनको they may be considered as a conformist, they can also be declared as innovators, or they may be linked with rituals, or they may be counted under rituators, or they may be described as a rappers. Conformist क्या होते हैं? Conformist वो होंगे कि we can take example, चले रहीला की example ही दे देते हैं कि for example हम कहें कि जो रहीला है, रहीला की family उसको कहती है कि आपने जो है ना फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वो खाना बनाना है, ठीक है? तो अगर रहीला जो है वो ये समझती है कि अच्छा लड़कियों को घर के काम करने चाहिए और वो फिर खुद भी पार्टिसिपेट करे और अकॉर्डिंगली शी फील्स हैप्पी व्हाइल गेटिंग मोर एंगेज्ड इन डोमेस्टिक अफेयर्स, हम कहेंगे कि रहीला जो है, रहीला इज अ कन्फॉर्मिस्ट, जो सोसाइटी का गोल है और मीन्स टू अचीव दैट गोल वो दोनों को एक्सेप्ट करें, तो उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है? इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ड्रेसिंग की बात कर लें कि हम कहते हैं जी कि अच्छा ये ड्रेसिंग करनी चाहिए, यू हैव टू कवर योर बॉडी, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग यू नीड टू हैव, दैट इज गोइंग समथिंग दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय सोसाइटी. तो आप जो सोसाइटी का गोल है, यू हैव टू कवर योर बॉडी, और हाउ टू कवर, कि उसका जो तरीका कार है अगर आप उसको भी फॉलो करें तो उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मिस्ट. इज इट क्लियर? ये स्ट्रेन थ्योरी, मुबशर साहब स्ट्रेन थ्योरी कौन सी है? व्हाट इज स्ट्रेन थ्योरी? देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी में जो भी उनके रोल है वो वही इंडिविजुअल्स रोल परफॉर्म करते हैं जो कि उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर उनको अलाउ करता है. यहाँ पे जो बात है ना स्ट्रक्चर की, means we are talking of their intangible culture, उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है? That is the structural functionalism, कि individuals अगर हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी नजर आती है तो इसका मतलब है कि उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है. जिस तरह हमारी सोसाइटी है कि हमने क्लियर कट डिवीजन की हुई है कि होम मेकर और अ ब्रेड विनर, और हमारी सोसाइटी में जिस तरह लड़कियां फॉर एग्जांपल वो पढ़ना चाहती भी नहीं है या वो जॉब करना भी नहीं चाहती, वो कहते हैं कि हमारी तो ये जिम्मेदारी नहीं है, जिसके साथ शादी होगी वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाना. तो दैट इज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल इन आवर कल्चर.
तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के पास जो इनइक्वालिटी है, कि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास इक्वल फ्रीडम नहीं है, उनके पास इक्वल रोल्स नहीं है, क्योंकि उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस चीज को सपोर्ट करता है। फिर हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन सोसाइटल गोल और मीन्स, इंडिविजुअल की ये टाइप्स हो सकती हैं: कन्फॉर्मिस्ट, इनोवेटर्स, रिचुअल, लिटरेचर और रेबल्स। क्लियर? कन्फॉर्मिस्ट, ओके। इनोवेटर्स वो होते हैं जो सोसाइटी के गोल को तो मानते हैं, लेकिन सोसाइटी का जो यूजुअल वे है टू अचीव दैट गोल, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, मसलन हम रहीला की एग्जांपल ले रहे थे कि रहीला का एक अच्छा जी कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आई हैव टू मैनेज फूड, बट नॉट नेसेसरली आई हैव टू डू अ डंकी वर्क, सो इवन आई कैन ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन एंड आई कैन सर्व दैट फूड टू माय फैमिली मेंबर्स। तो इसको हम कहेंगे इनोवेटर, जो सोसाइटी के गोल को तो मानते हैं, लेकिन सोसाइटी का मीन्स टू अचीव दैट गोल उसको नहीं मानते। इसको हम कहते हैं इनोवेटर्स। ठीक है, क्लियर? ओके। इसी तरह ही आप जो एक और एग्जांपल हमने देखी थी कि यू हैव टू कवर योर बॉडी, तो आप कहते हैं जी कि अच्छा बॉडी में, लेकिन नॉट नेसेसरली यू हैव टू कवर योर हेड, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ समझाना मकसद है, उसको हम कहते हैं इनोवेटर्स। इस तरह आप कहते हैं कि जॉब करनी जरूरी है, तो नॉट नेसेसरली कि आप कहेंगे जॉब मैंने एज ए टीचिंग या मेडिकल की करनी है। अगर हम फीमेल की बात करें तो हम कहते हैं कि वो फीमेल जो है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो दैट इज अ इनोवेटर, जो सोसाइटी के गोल को तो मानते हो लेकिन मीन्स टू अचीव दैट गोल उसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, थर्ड आ जाते हैं रिचुअल्स। रिचुअल्स वो होते हैं जो सोसाइटी के गोल को तो एक्सेप्ट नहीं करते, बट स्टिल दे आर गोइंग टू परसुइंग द मीन्स टू अचीव दैट गोल। अब उसकी एग्जांपल ये है कि हम अगर एक फीमेल को कहें कि खाना बनाना आपकी जिम्मेदारी है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करे कि दिस इज नॉट माई टास्क, दैट आई हैव टू keep myself engaged in kitchen related activities. Although she is disagreeing with such objective, but still she is going to performing her role in kitchen related activities. तो इसको हम कहते हैं रिचुअल, जो कि गोल को तो नहीं मानते बट स्टिल वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिट्रेटर्स वो होते हैं जो सोसाइटी के ना तो वो गोल को मानते हैं ना वो मीन्स को मानते हैं। कि मसलन हम कहें कि रहीला ये कहे कि ना तो मैंने खाना बनाना है और ना मैं ये काम करूंगी और ना मैं ये समझती हूँ कि मुझे खाना बनाना चाहिए। ठीक है, अगर वो हर चीज का डिनाई करे तो इसको कहते हैं रिट्रेटर्स। रैबल्स ये होगा कि रहीला ये कहे कि ना मैंने खाना नहीं बनाना, मैंने जॉब ही करी। ठीक है, तो वो एक अपना बनाएगी कि व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द मीन्स टू अचीव दैट गोल, तो सोसाइटी उसको रैबल्स करती है। इसी तरह अगर हम औरत मार्च की बात करें तो औरत मार्च में अगर जो फीमेल है, काइंडली मीन्स एक्सप्लेन कर दें, खालसा मैं करता हूँ। अब फीमेल में फॉर एग्जांपल औरत मार्च में अगर फीमेल एक स्लोगन रेज करती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सो दे आर कंसीडर्ड एज अ रेबल इन आवर सोसाइटी। ठीक है, उसको लोग जो मुख्तलिफ उनके नाम दे रहे हैं और उनको समझते हैं कि ये फजूल औरतें हैं, इस तरह ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि उनका जो गोल है कि भाई दिस इज नॉट समथिंग कि इफ वी हैव आवर ओन बॉडी डजंट मीन दैट वी हैव टू डिसाइड आवर मैरिज, we have to decide with whom we need to spend our lives. तो वो एक अपना गोल बनाती हैं और means not necessarily that we are going to show more you can say they are going to have more firm belief in arranged marriage, so even love marriage is also acceptable, so that is a different way to achieve that goal. तो आप उनको रेबल कहते हैं। Is it clear? अच्छा तलाल, आपने कहा कि गोल और मीन को एक्सप्लेन कर दें। गोल मतलब कि आप समझते हैं कि ये काम करना है और उस काम करने का जो तरीकाकार है दैट इज अ मीन्स। उसकी एग्जांपल आपने ये दी कि आप कहते हैं कि शादी करना एक गोल है कि चले लड़की की शादी होनी चाहिए। आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? आप कहते हैं कि ओके आई नीड टू गेट मैरिड, दैट इज योर गोल। अब वो कैसे हो सकती है? मीन्स उसका जो है वो लव मैरिज है, सो यू हैव टू डिसाइड। क्लियर? क्लियर? Okay, thank you very much. Okay, next. There are certain approaches to development की जो progress हुई है, उस progress को आप किस तरह से देखते हैं? With, wet और get? जी, with से क्या बनता है? What do you mean by what? Women in development. शाबाश, इरशाद। और wet से क्या बनता है? ओके,
women and development, excellent। और गैर से क्या बनता है? gender and development, excellent। ओके शाबाश। ओके, अगर हम बेड की बात करें तो इसको जो लिबरल फेमिनिज्म है वो इसको सपोर्ट करते हैं। और लिबरल फेमिनिज्म का ये ख्याल था कि इनका जो ओवरऑल फोकस था ना, कि फीमेल जो भी डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में वुमेन दे वुड बी कंसीडर्ड एज एन essential part of that development। If women they are not going to be considered, and if women they are not going to get involved in that development, that is not a real development। So only development could be achieved through participation of a women। ओके, तो इनका ये ख्याल था कि आप जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें वुमेन को शामिल करो, ठीक है। अब वुमेन को शामिल कैसे किया जा सकता है, ये आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है सारी, कि वुमेन उस टाइम डेवलपमेंट में शामिल होगी जब उसको आप पब्लिक रोल देंगे। पब्लिक रोल कब देंगे? जब फीमेल को आप पैट्रियार्कल लिमिटेशन से आज़ाद करेंगे, ठीक है। जब आप फीमेल को पैट्रियार्कल लिमिटेशन से आज़ाद करेंगे तो ऑटोमेटिकली फीमेल के पास इक्वालिटी होगी, फीमेल के पास फ्रीडम होगी इन परफॉर्मेंस ऑफ रोल। और फिर जो है अगर फीमेल को पब्लिक रोल तक एक्सेस मिले तो एट द सेम टाइम देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, कि जो फीमेल है उसके जो एम्प्लॉयर राइट्स हैं, उसके जो मैटरनिटी राइट्स हैं, और फीमेल के जो है अगर हम बात करें तो फीमेल के जो प्रमोशनल राइट्स हैं, ठीक है, उनको भी आप प्रोटेक्ट करें। और वो फीमेल जो कि पॉवर्टी में है उनके लिए आप एंटी पॉवर्टी मेजर्स लें। एंटी पॉवर्टी मेजर, you have to support them through financial assistance, you have to involve them in jobs through quota system, you have to make good laws for their empowerment, ठीक है। so that's all women and development, ये सारी उसी के examples है, ठीक है, कि आपकी जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में अगर फीमेल नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी मेड व्हेन women they are going to be given opportunity to take part in the development process। And if in that development process, if a men they are going to be just given due opportunities and at the cost of women, then it is not your real development। That's all about it। Clear? ओके, थैंक यू यार। वैसे आप लोग बड़े लकी हैं, आपसे पहले जो क्लास थी ना उनके साथ मेरा बहुत वो आई कैन बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, वो नेट चल ही नहीं रहा था। लेकिन आपकी तरफ कोई भी अभी इशू नहीं हुआ है, नहीं हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट फिर कहता है वेड। वेड क्या है? वेड जो है वुमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इनका क्या ख्याल था? इनका ये ख्याल था कि ये कहना कि फीमेल को डेवलपमेंट में शामिल किया जाए ये गलत बात है। जो वुमेन हैं दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। यू are of opinion that women they may be given opportunity to be part of the development because currently their services they remain unnoticed, they are going to be ignored। So rather than saying that a woman they need to be made part of the development, you need to change your thinking and you have to appreciate their role। Women are already part of development because no development can be made without involvement of women। Problem lies with the recognition of their services। So you have to recognize their services, you have to acknowledge their potential, you have to appreciate their performance, you have to reward their services। That is a women and development, ठीक है, कि women जो हैं they are already essential part of the development। Okay, अब जो women हैं, आपको women क्यों उनका ये ख्याल है कि okay, मसलन अगर हम बात करें इसकी किसकी बात करें, okay, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, who is the founder of modern economics by the way? Who is the father? Adam Smith, excellent, shabash। okay, तो जब हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो उसका जो इकोनॉमिक सफेयर की वो बात करता है तो वो कहता है कि आपकी इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक कौन सा आपका प्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा उसका हाउस होल्ड पार्ट। अगर आपका जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मोस्टली डोमिनेटेड है बाय मेन और हाउस होल्ड टास्क किसके पास है? बाय वुमेन। अब एडम स्मिथ के नजदीक जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट।
कि जो आपका प्रोडक्शन है वो विदाउट मैनेजमेंट वो कुछ भी नहीं है। तो जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है दैट इज विद वुमेन। इनका ये ख्याल था कि जो करंटली वुमेन हैं दे आर गोइंग टू बी एंगेज्ड इन डोमेस्टिक अफेयर, और उनका जो डोमेस्टिक रोल है दैट इज अनपेड, उनके लिए उनके सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो अननोटिस रहता है और आप समझते हैं कि वुमेन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। सो वुमेन आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट व्हाइल गेटिंग एंगेज्ड इन डोमेस्टिक अफेयर्स, लेकिन उसके लिए वो जो सर्विसेज देती हैं, अब देखें ना कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल जॉब नहीं करती, अगर एक फीमेल जॉब नहीं करती तो आपका क्या ख्याल है कि वो घर में सारा दिन सोती है? व्हाट डू यू थिंक? क्या करती है? एक्सीलेंट, शाबाश। तो इसका मतलब कि अगर वो क्लीनिंग कर रही है, अगर वो उसमें डस्टिंग कर रही है, वॉशिंग कर रही है, वो आप में उसमें कुकिंग कर रही है, वट एवर, तो भाई अगर वो फीमेल नहीं करेगी तो यू नीड टू हायर सर्विसेज ऑफ अदर पर्सन जो कि अब ये काम करेगा, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान जैसा कंट्री है इसमें तो मर्दों को फायदा ही फायदा है कि आपके सारे बेनिफिट्स आपको औरत की सूरत में मिल जाते हैं। तो एक जो फुल पैकेज है किस्म का वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज अनफॉर्चुनेटली। ओके, अब उनका ये ख्याल था कि क्योंकि जो अभी करंटली जो वो सर्विसेज देती हैं दैट रिमेन अननोटिस्ड ड्यू टू पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म। अगेन व्हेन यू टॉकिंग ऑफ अ कैपिटलिज्म देयर इज आल्सो पैट्रियार्कल थिंकिंग एज वेल। नॉइस एंड नॉइस क्या मतलब बट साहब? चलें, शुक्र है आज भट्ट साहब के टेबल नहीं है, वरना इनका खाना तो उस वक्त आगे इन्होंने रखा हुआ था। तो आई होप सो कि भट्ट साहब ने रोजा रखा होगा। चलिए शुक्र है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था पैट्रियार्की। यस, ओके, तो उनका ये ख्याल है कि ये जो पैट्रियार्की है, ये भट्ट साहब अफ्तारी तो किसी और ने भी बुला दो, ये खुद ही कर खा जाते हो सारा कुछ। एनीहो, तो उनका ये ख्याल है कि ये प्रॉब्लम जो है दैट रिमेन्स विद द पैट्रियार्की, दैट इवन वुमेन दे आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड बट स्टिल देयर सर्विसेज दे आर नॉट गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। तो आप इस चीज पैट्रियार्की को खत्म करें। और उनका ये ख्याल है कि ये जो आप पैट्रियार्की की बात करते हैं या कैपिटलिज्म जो अगेन दैट इज अ पैट्रियार्की, अब रीजन क्या है? उनका ये ख्याल है कि ये जो फीमेल जो हैं दे आर गोइंग टू बी इग्नोर्ड, और जो वुमेन हैं, वुमेन को जो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, उनका ये ख्याल है कि ये जो एक हायरार्की है, डिवीजन है, वो उस डिवीजन में प्रॉब्लम है कि आपके जो इंटरनेशनल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फैमिली लेवल पे बात करते हैं, फिर आप लोकल लेवल पे बात करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे बात करते हैं, नेशनल लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल पे बात करते हैं। तो हमेशा चेंजेस दो तरह की होती है, एक टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। उनका ये ख्याल है कि जो वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना कैपिटलिज्म, इसमें जो चेंज एसेंशियल है दैट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। अब उनका ये ख्याल था कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में भी इनइक्वालिटी है। कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में क्या मुराद है? इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से मुराद आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो आपके पॉलिसी, आपके रिलेशंस, स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करते हैं। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम मिसाल लें तो कौन सी होगी? IMF होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है, आपका WTO होगा। दे आर आल्सो मैन डोमिनेटेड, जिसकी वजह से उसके जो इफेक्ट्स हैं दे कैन नॉट बी टेकन टू बॉटम। और सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ योर फैमिली, सो स्टिल देयर इज द इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? ओके, अब उनका ये ख्याल था कि जो फिर जो वुमेन के रोल है, वुमेन के रोल किस तरह से नोटिसेबल हो सकते हैं? वुमेन के रोल नोटिसेबल हो सकते हैं when a woman is going to prefer public role to private role. अब प्राइवेट स्फेयर क्या है? प्राइवेट स्फेयर में उसका जो रोल्स हैं और उसके जो हाउस होल्ड टास्क हैं, दे आर प्राइवेट स्फेयर। पब्लिक रोल्स में कौन से हैं जो कि उसके ओवरऑल जिसमें उसको सर्विस रिवार्ड मिलता है? उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है, इफ दे हैव अ ऑप्शन, सो वुमेन शुड प्रेफर पब्लिक रोल ओवर प्राइवेट अफेयर। ओके, और उनका ये भी ख्याल था कि जो वुमेन है दे आर द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टर्स इन द सोसाइटी,
कि जो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया एडम स्मिथ की थ्योरी, तो उनके बगैर उनका रोल कुछ भी नहीं है। तो क्यों वो अभी आप समझते हैं कि उसको शामिल किया जाए, क्योंकि सर्विसेज उनकी अननोटिस रहती है, राजा उनको पब्लिक रोल प्रेफर करने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट व्हाई। इज इट ऑल ओके? पाकिस्तान में, चले पाकिस्तान को पढ़ते हैं क्या है ज्यादा। ओके नेक्स्ट, अब जाते हैं गैड अप्रोच। जो गैड अप्रोच है, गैड अप्रोच बेसिकली दैट इज अ सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो गैड अप्रोच है ये बेसिकली ये जो डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स थे ना, विद वुमेन फॉर अ न्यू एरा, उसको डॉन एब्रिविएशन है उसका। तो जब ये स्टार्ट होता है इंडिया से 1986 से, तो तब जो है ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है दैट इज गोइंग टू बी हाईलाइटेड, जो कि यूएन थर्ड कॉन्फ्रेंस नैरोबी में हुई थी। ओके, अब गैड क्या करता है? गैड जो है, एक तो यह है कि ये पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी को रिजेक्ट करता है, कि जिस तरह वैड ने कहा था ना कि women have an option that if you have to perform a public or a private role, so which role you need to give a move with it, so obviously you need to go for a public role. They are going to negate such division. इनका ये ख्याल था कि you can't say that you have to go for a public. It should be individual choice that whether you need to go for a public or a private role, but you cannot dictate and you cannot compel individuals to perform certain roles at the cost of others. तो ये जो dichotomy है public private role की, वो उसको negate करते हैं। ओके, नेक्स्ट इनका पॉइंट था कि ये जो आप जेंडर एंड डेवलपमेंट है, कि डेवलपमेंट में वुमेन का क्यों रोल नहीं है। उनका ये ख्याल था कि डेवलपमेंट जो है उस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक आप प्राइवेट स्फेयर में इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंस ना दें। और उनका ये ख्याल था कि अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन की जो ऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर प्राइवेट स्फेयर। So this is the very important why women they're going to be oppressed in the private sphere. That is again because of a patriarchy, and in a patriarchy you are going to limit the roles, and you are going to judge society just on the basis of two things: domination and submission. Women they are going to consider as a submissive, and men they are going to be considered more dominant here. ओके, नेक्स्ट उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है डेवलपमेंट के लिए, जो वुमेन ऑब्वियसली व्हेन यू टॉकिंग ऑफ जेंडर, सो नॉट स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू टॉक ऑफ जस्ट वुमेन, दे आर टॉकिंग ऑफ थर्ड सेक्स आल्सो, दे आर टॉकिंग ऑफ ऑल जेंडर, men, women and transgender. But again you can say when you're talking of a gender, so women are also part of it, and women because they are more in number in term of their victim, this is one of the reasons that still we are going to focus more on women. अच्छा, स्पीड, ओके, गॉट इट। विद डेवलपमेंट डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ, ये समाविया इसको करते हैं अभी क्लियर, डोंट गो, ठीक है जी। जहूर साहब करते हैं क्लियर, लेट मी कंप्लीट, फिर आप बताइएगा कि क्लियर है या नहीं, ठीक। ओके, जो जेंडर है, जेंडर में थर्ड सेक्स की भी बात है। चलें, हौसला रखें जनाब, अभी मैं इधर ही हूँ, मैं कौन सा भाग रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। जेंडर इज नॉट स्पेसिफिक टू वुमेन, जेंडर जो है जेंडर इंक्लूड्स वुमेन, ठीक है। तो इनका जिस तरह वुमेन एंड डेवलपमेंट उनका फोकस ही वुमेन पे था, इनका फोकस ऑल जेंडर्स पे था, मेन पे भी, वुमेन पे भी और थर्ड सेक्स पे भी। लेकिन ये समझते थे कि जिस तरह वैड ने कहा था ना, वैड ने क्या कहा था, वैड ने कहा था कि अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट रोल तो किसको प्रेफर करना चाहिए, पब्लिक को। ये जो पब्लिक प्राइवेट की डिवीजन है इसको उन्होंने नेगेट किया था कि दिस शुड बी इंडिविजुअल चॉइस, कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो होम रोल परफॉर्म करना चाहता है या प्राइवेट रोल परफॉर्म करना चाहता है, डोमेस्टिक रोल परफॉर्म करना चाहता है, यू कैन नॉट से दैट यू हैव टू गो फॉर अ पब्लिक। जिस तरह अभी मैडम अब्बासी ने कहा कि मुझे आफ्टर गेटिंग मैरिड आई वुड बी हैप्पी टू सर्व माय स्पाउस इन डोमेस्टिक स्फीयर। अब ये इसकी चॉइस है, आप इसको ये नहीं कह सकते जी कि आप अपने उसके साथ मत कोऑपरेट करो। ये जेंडर जो पब्लिक वाले वैड वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं आपको तो ये नहीं करना, आपको पब्लिक रोल ही परफॉर्म करना, आपको जॉब ही करनी, ठीक है। गैर वाले कहते हैं कि आप उनको डिक्टेशन नहीं दे, चॉइस है, वो चाहे पब्लिक करें चाहे प्राइवेट करें, एक तो ये है।
दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था वैड वालों ने कि ये जो वुमेन की ऑपरेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, कि टॉप टू बॉटम अप्रोच एसेंशियल है। गैड वालों का ख्याल था कि ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है दैट इज नॉट मोर वर्केबल। सॉरी ओके इनका ये ख्याल था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच दैट वुड बी मोर वैलिड हियर, कि बजाय के कि जब तक इंटरनेशनल लेवल पे इक्वालिटी नहीं आएगी उसके इफेक्ट्स ट्रिकल डाउन नहीं होगी और बॉटम पे चेंज नहीं आएगी। इनका ये ख्याल था कि आपको ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक चेंज लाने की जरूरत है और सबसे पहले चेंज आपकी फैमिली में आनी चाहिए। आपके प्राइवेट स्फेयर में इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट करना चाहिए और प्राइवेट स्फेयर में जो इंडिविजुअल की विक्टिमाइजेशन है उसको आपको कर्टेल करना चाहिए। इज इट क्लियर? बात कर ले पड़ी। थैंक यू वेरी मच। ओके नेक्स्ट इनका ये था कि इन्होंने कहा था कि जो वुमेन है ये कहना कि चेंज शुड बी ब्रॉट फॉर वुमेन, जिस तरह की इन्होंने कहा था, ठीक है, कि इन्होंने कहा था कि वो चेंज आएगी जिसकी बेसिस पे या फीमेल के उनको वो करें। इन्होंने कहा था कि जो वुमेन है चेंज वुमेन ने लेके आनी, वुमेन आर द एजेंट्स ऑफ चेंज रादर देन अ पैसिव रेसिपिएंट। So you cannot look and you cannot rely on men's support for your empowerment. You have to bring change by yourself and you should act as important actor rather than looking for as just passive recipient. So you have to eradicate such thinking. That's why GAD is a different from wedge. Clear? Okay, thank you very much. नेक्स्ट इनका ये ख्याल था कि पॉलिटिकल वॉइस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स नहीं लोगे तब तक आपके बाकी इशू भी जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसमें एक स्लोगन यूज होता है, लेट मी रिकॉल दैट स्लोगन, उसका नाम है यस उसका नाम है पर्सनल इज पॉलिटिकल। ठीक है, ये हम वैसे जब आपको वेव्स पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये होता है कि नथिंग इज अ पर्सनल, नथिंग इज अ पॉलिटिकल। वट एवर पॉलिटिकल डिसीजन यू टेक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पर्सनल इश्यूज, and what your personal issues you are going to face, that is because of the political decisions. For example, you can say marital rape. Marital rape is not your personal issue because politically you have not enacted a law. That's why you are going to face a particular issue. Similarly, you can say domestic violence. So no, because politically you didn't take such initiative due to which you are going to suffer domestic violence. So again, nothing is personal, nothing is political. So whenever you take any political decision that is going to improve your personal life or that is going to you can say that is going to deteriorate your personal life. So basically nothing is personal, nothing is a political. Similarly, when you're talking of a gender and development, they were of the view that if you want to change, if you want to improve, and if you want to raise your personal issues in your own personal capacity, and you want to take out of yourself from oppression, then you have to increase your political voice. Okay. Next concern is that you have to take your due rights in inheritance, because without your economic rights, your personal issues cannot be overcome. So just you can say that you need to be given access to public role, it doesn't mean that your exploitation is over, as the point that was explained by Ward, that when you have been given access to public role, it's all about your independence. But when you're talking of a GAD, they were of the view that at the same time, not necessarily that you have to gain access to public role. At the same time, when you're talking of your inheritance, when you're talking of your property rights, and unless they're going to be secured through legislation, your empowerment cannot be gained. Last but not least, you have to redefine traditional roles. You have to bring change in individual thinking. You have to change the non-material culture. You have to change ideology of individual.
You have to eradicate such clear-cut demarcation in role. This is for male, this is for female. So you have to redefine roles. Is it clear? That is all about get. जी हुन कोई कंफ्यूजन है हाले तक? ये सब क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। रहीला, आपकी कहाँ सुई फंसी हुई है अभी तक? चलिए रहीला, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। रहीला, जी रहीला। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि गैड मारो ने भी तो वुमेन के रिलेटेड ही बोला है ना, तो फिर वुमेन एंड डेवलपमेंट में भी तो इसमें जेंडर का क्या है? रहीला, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जेंडर स्टडीज है ही बेसिकली वेमेन की, क्योंकि वेमेन उसका पार्ट है जेंडर स्टडीज का। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, वेमेन आर नॉट सेपरेट फ्रॉम जेंडर्स, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप 3 सेक्स की बात करते हैं तो उसमें जो परपेट्रेटर है वो कौन है? वो तो मेल है। और दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि वेमेन दे आर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और जो थर्ड सेक्स है उनका नंबर बड़ा लिमिटेड है। इन्होंने उनकी बात जरूर की है, बट अगेन क्योंकि देखिए जो मेजॉरिटी में है उनको तो ये इग्नोर नहीं कर सकते ना, इसलिए इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है एम्पावरमेंट कि वेमेन की भी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन वेमेन की जो स्ट्रेटजी एम्पावरमेंट की फ्रॉम द वर्ड, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके सर, ठीक है सर। ये आपको वाकई समझ आई है या ऐसी कर्टसी नहीं। होके कह दिया आपने? नहीं सर, समझ आ गई, वाकई से समझ आ गई। अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा ऐसे कर्टसी में ना कह दीजिएगा। नहीं। बट साहब को नहीं पूछेंगे, बट साहब नफ्तारी तक है तो बट साहब वैसे ही गैप हो गए। चलिए, दैट वाज जस्ट एन लाइटर नोट। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अ सैप। बट साहब कभी सैप खाया है अपनी इफ्तारी में? चले बट साहब ने सैप तो नहीं खाया होगा, स्नेक खाया होगा। चलें ओके। तो जो सैप है दैट इज अ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब जब हम स्ट्रक्चरल एडजस्ट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, सो ये बेसिकली ये जो सैप है ना, ये आपकी जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है, ये चीज़ उससे रिलेट करती है कि आपकी जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, आपका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से जेंडर डिस्पैरिटी को सपोर्ट करता है या जेंडर डिस्पैरिटी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट देता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, अब जब हम बात करते हैं सैप की, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, हाउ डू यू डिफाइन सैप? स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आई कैन टाइप हियर फॉर यू। सैप्स जो हैं ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। ये यासर आपको आता है या मैं चलिए यासर को एक मौका दे देते हैं। यासर, वुड यू लाइक टू स्पीक, और वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैप if it is convenient to you? यासर, यासर भी भाग गए, नहीं है यासर अभी मीटिंग में। चले यासर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एनीवे इट्स ओके। तो सैप्स जो हैं ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। अच्छा आपने लिख लिया है, ओके। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं ये कौन देता है? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए हैं। और इसमें उनको क्या होता क्या है, बेसिकली इसमें सर्टन फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है ये कब मिलती है उनको? ये बेसिकली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस, ठीक है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। सो बेसिकली हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स आर देयर इन दिस डेफिनेशन? These are the economic policies by the World Economic Institutions for the developing, least developing countries, whereby certain financial assistance is given subject to fulfilling certain conditions. तो total कितनी conditions हुई इसकी? 5, ठीक है। ingredients आप बात करें इस definitions के तो 5 हुए। World Economic Institutions कौन से हैं? वो IMF है और वो World Bank है, ठीक है। Clear? Is it clear? Okay. अब बात यह है कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है आपको क्यों मिलेगी?
ठीक है, क्यों आपको IMF पैसे देगा? ओके, ऑब्वियसली जब आप किसी से पैसे लेंगे तो वो, अब आप कहेंगे कि भट्ट साहब आप तो इतना 5,000 का डेली का खाना खा जाते हो, तो 5,000 हमें भी उधारे दे दो। तो भट्ट साहब वो लोन आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भट्ट साहब के माइंड में ये होगा कि यार whether you can loan or not, what are the conditions on the basis of which he is going to issue some loans to you. So without assessing your credibility and without knowing your target for which you are going to ask for money, Barsa will never allow you for loan. Similarly, okay, यार देखे ना, ओके चलें ठीक है Barsa। इसी तरह हम कहते हैं कि जो सैप है, सैप जब आपको पैसे देता है तो उसके कुछ टारगेट्स होते हैं। मसलन लिबरलाइज द इकोनॉमी, कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, आप कंपटीशन को सपोर्ट करो, ठीक है, कार्टेलाइजेशन को खत्म करो, मोनोपोली को खत्म करो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करो, ठीक है, आप जो है फिस्कल इम्बैलेंस को ओवरकम करो, पॉवर्टी को खत्म करो, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओगे तो पैसा वापस कर पाओगे ना, ठीक है, और आप ऐसी कंडीशंस लेके आओ मेकिंग कंट्री केपेबल ऑफ रिटर्निंग लोन, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल अपनी सब्सिडी खत्म करो, आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करो, फिर ही आप लोन वापस कर पाओगे ना। जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करेंगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, आप लोन कैसे खत्म कर पाएंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशंस होती हैं जिसकी बेस पे आपको पैसे मिलते हैं, जो हम कह रहे थे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। इज इट क्लियर? इज ऑल गुड? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो सैप है, अब सैप के रिलेशन को पाकिस्तान के साथ कैसे देखते हैं? इज इट गुड और बैड? ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। 2009 में भी है, फिर 2019 में, ठीक है। ओके, ये तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, छोड़ें, चलें। अब आप मुझे बताएं, अच्छा, हु इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट? Whom should I unmute? Who is interested to speak here? Do we have any volunteer here? आप इसके इम्पैक्ट्स को किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है तो किस तरह से है, नेगेटिव है तो किस तरह से नेगेटिव है? You wanna speak or no? At least write no. कोई भी नहीं बोलना चाहता? चलें, मुबारक, शुक्रिया। ओके, तो बड़े अफसोस की बात है। चलें, शरोज साहब बोलना चाहते हैं। शरोज साहब, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यार। चलिए, कोई बात नहीं, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा ना। ये किसने कहा था? शहरोज जी, शहरोज खलील साहब। वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर, जिस तरह हम सर IMF हमें कंडीशंस देती है, जिस तरह हमें कोई कंडीशंस पे हमें लोन देती है, तो सर हम वो कंडीशंस देखते हैं कि हम पूरी करते हैं कि नहीं। जिस तरह सर हमें कहते हैं टैक्सेस बढ़ा दे या मुझे एजुकेशन पे लगाएं। एक मिनट पहले बताएं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव में भी आता है सर, नेगेटिव में उसके साथ सर वन बाय आप मेरे से ज्यादा स्पीड तो आपकी है। ओके, हम कहते हैं कि इसके जो है जो इम्पैक्ट्स एंड देयर डुअल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बताएं। सर पॉजिटिव ये कि सर हमें जो लोन देते हैं सर, हमें देते कि एजुकेशन पे हम लगाए, पोवर्टी पे लगाए सर। तो हमारे साथ इतना अपने खुद इतने नहीं है पैसे कि हम सर इन चीज़ों पे लगाए, तो हम सर IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि हम ये पैसे इन जगहों पे लगाएंगे, तो वो फिर हमें सर इन कंडीशंस पे लोन देते हैं। लेकिन सर नेगेटिव इसकी है कि हम सर एक मिनट हौसला करें। तो बेसिकली पॉजिटिव हम कहेंगे कि जो इसकी कंडीशंस हैं वो सारी पॉजिटिव है, कि आप पाकिस्तान में ने क्या किया कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज किया, आपने टैरिफ कम किए, टैरिफ कम करेंगे तो आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट वुड बी इंक्रीज, ठीक है। वो कहते हैं कंपटीशन कम करें, तो पाकिस्तान ने जो है वो कंपटीशन कमीशन बनाया जो कि आपके कार्टेलाइजेशन और मोनोपोली को ख़त्म करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जब आप फर्म्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आपका कंपटीशन आएगा, कंपटीशन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और आप इनोवेशन की तरफ जाएंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, पाकिस्तान में वो भी हुआ, ठीक है।
अच्छा सायरा, मेरी स्पीड तेज जा रही है। अच्छा चले, स्लो करता हूँ मैं। अच्छा सॉरी, अभी आपने ना वो इसको अपने आप को म्यूट नहीं करना है शाहरुख, जी ठीक जी है। जी 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 सर। ओके, फिर हम कहते हैं जी कि प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हुआ, बिल्कुल ठीक। आपने ये आइए इसकी एग्जांपल ले लें, किसकी लें, पीटीसीएल की ले लें कि पीटीसीएल को अपने प्राइवेटाइज किया तो पीटीसीएल बड़ी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह आप पीआईए या आप इसकी बात करें स्टील मिल, सो दे आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वाइट शुरू किए ताकि जो पावर्टी है उससे लोगों को निकाला जा सके, ठीक है। आपने सर्टन लोन्स दिए बिजनेस के लिए। और आपको आवाज आ रही है, कैन यू हेयर मी? जी जी आ रही है सर, आ रही है। स्टेट आ बैंक रही हो है, गया सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, उसके बाद आप कहते हैं आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेके आती है, गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज लेके आती है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि कंट्री की प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी एंड सो ऑन। तो ये तो सारी चीजें होगी पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जी जी जाती हैं कि जो सैप है उसके पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। जी शरोज, नाउ इट्स योर टर्न। जी सर। नेगेटिव ये है सर कि जिस तरह वो हमें लोन देते हैं इन चीज़ों के लिए कि हम इन वुमेन एम्पावरमेंट पे लगाए, एजुकेशन पे लगाए, तो वो सर हमें आगे से बताते हैं कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर, लेकिन हम सर टैक्स नहीं कलेक्ट पाते, नहीं कलेक्ट कर सकते इतना सर। और सर दूसरी बात ये सर, हम वो हमें जिस चीज़ के लिए फंडिंग देते हैं उसमें सर करप्शन होती है सर। अगर वो हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देते या एजुकेशन के लिए या फूड सिक्योरिटी के लिए देते तो हम सर उसमें एक करप्शन हो जाती है सर। ये एक बड़ा सर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका सर। हम इसका सर प्रॉपर आईएमएफ का क्या यूटिलाइज। लेना देना? अगर करप्शन है तो करप्शन इज योर इंटरनल इशू, इसका आईएमएफ के साथ लिंक तो कोई नहीं है। हम तो आईएमएफ पे बात कर रहे हैं ना कि आईएमएफ के साथ जो कंडीशन है वो गलत है। अगर वो गलत है तो हम उस पे बात करें ना। हम जी अपने इंटरनल इश्यूज को तो आईएमएफ के साथ लिंक नहीं कर सकते। स्टेट बैंक का सर जिस तरह हमने किया सर, स्टेट बैंक की जो कंडीशंस थी सर वो हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं सर। हमने बहुत ज्यादा उसको सर ऑटोनोमस कर दिया सर, इतना नहीं करना चाहिए था सर। तो ये एक है सर कंडीशन जो स्टेट बैंक आईएमएफ ने हमारे पे रखी है सर। नहीं, मेरा इसके एक ख्याल है कि आप नेगेटिव। इसको नहीं, आप मेरा ख्याल इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो लेट मी एक्सप्लेन, डोंट वरी। एनी थैंक यू वेरी मच शेरोज, आई अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन। ओके, अगर हम इसको, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी कोई नहीं कहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शाह साहब, स्टेट बैंक वाली बात मैंने अभी नहीं कहा, ठीक है। ओके, मेरा ख्याल पहले मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कंप्लीट कर लूं। ओके, ये कहते हैं कि आप कंट्री केपेबल तब होता है जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे तो वो पैसे देगा ना। वो पैसे कब होंगे? जब अपने वो रेवेन्यू को बढ़ाएगा। रेवेन्यू कब बढ़ाएगा? रेवेन्यू बढ़ाएगा थ्रू टैक्स। टैक्स को कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सबसे जो इजी है, जब आपने रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाना है तो आपका किस पे फोकस होगा? डायरेक्ट टैक्स पे होगा या इनडायरेक्ट टैक्स पे होगा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स पे होगा। कि भट्ट साहब जो है 5,000 का खाना खाते हैं, भट्ट साहब जो है एक टाइम का, अगर भट्ट साहब नेस्ले की बोतल लेते हैं तो भट्ट साहब उस पर 2 रुपए टैक्स देते हैं। अब हमारे जैसे जो कि नहीं 5,000 का खा सकते, ठीक है, हम भी दो रुपए टैक्स देते हैं। दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, कि जिसमें आपको लोगों की इनकम से कंसर्न नहीं है। आपका जो टैक्स है दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कि आपने कपड़े लेने हैं इतना टैक्स है, खाना खाना है इतना टैक्स है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो टैक्स वॉल्यूम है दैट वुड बी ब्रॉडर। ओके, जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्स कम होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से यार ये क्या लिखा आपने बट साहब? कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन तब भी देगी, ये नहीं होगा। ये अब क्या बातें अपनी शुरू कर दी हैं? मैं आपको बता के रहा था, मैंने बुलाई दी है। हम कहाँ पे थे अभी? ओके, इनडायरेक्ट टैक्स पे थे।
तो स्टेट वो उनको कहते हैं कि आप अपना टैक्स वॉल्यूम बढ़ाएं। जब वो कहते हैं टैक्स वॉल्यूम बढ़ाएं तो आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्स आप बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। जब आपकी परचेजिंग पावर कम होगी तो आपकी सेविंग कम होगी, ज्यादा होगी? आपकी सेविंग भी कम होगी। जब आपकी सेविंग कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, ज्यादा होगी? इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, ज्यादा होगी? प्रोडक्शन भी कम होगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम होगी, ज्यादा होगी? एक्सपोर्ट्स भी कम होगी। जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, कम होंगी? आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी। जब इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो दैट वुड बी अ ट्रेड डेफिसिट। जब ट्रेड डेफिसिट होगा तो आपका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स की डिप्लीशन होगी। जब फॉरेन रिजर्व्स की डिप्लीशन होगी तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट करेगी या डेप्रिशिएट करेगी? आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगी? आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी। तो जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी तो पॉवर्टी कम होगी, ज्यादा होगी? पॉवर्टी ज्यादा होगी। तो दैट इज अ विशियस सर्कल कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप पॉवर्टी कम करो, दूसरी तरफ आपकी जो कंडीशंस हो जाती हैं वो पॉवर्टी को सपोर्ट करती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। दुनिया में जो टैक्स है, दुनिया में 60% डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और 40% जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में करंटली जो है वो 65% जो है दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, और आपका जो 35% है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्गर करो, या चले उससे पहले ये कर लें, वो कहते हैं आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो। आप अपनी इकोनॉमी को कब लिबरलाइज करते हो? जब आपकी इंडस्ट्री कंपटीशन के मोड में हो। तो जब आपकी जो इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव नहीं है, जब आपकी इंडस्ट्री जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट इज वेरी हाई, यू कैन नॉट लिबरलाइज योर इकोनॉमी, अदरवाइज योर इकोनॉमी वुड कोलैप्स। तो जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडस्ट्री कोलैप्स करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी बढ़ेगी। फिर आप कहते हैं कि आप अपनी पॉवर्टी खत्म करो। Can say market is very saturated when individuals हैं। आपको आवाज नहीं आ रही? Can you hear me? छोड़े यार, आपने सारा टेम्प भी तोड़ दिया। चले बस छोड़े। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। वो एक रिदम में मैं आपको बता रहा था, आपको समझ ही नहीं आई। चले छोड़ दें, जितनी आगे उतनी बड़ी है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस, ये लिखे हुए हैं, इसको देख लें। क्लियर? चलिए मूव नेक्स्ट। जिशान साहब, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो लगता है जो प्रोडक्ट पे लगता है, ठीक है। ये मोटा सा डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के जेंडर पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, या ग्लोबलाइजेशन जो है वो जेंडर में जो इंडिविजुअल्स उसमें इनइक्वालिटी को सपोर्ट करती है। अच्छा चुप, ये पढ़ लें 2 मिनट के लिए। ओके एक्सलेंट रहीला। चले पहले मैं रहीला को करूँ अनम्यूट। रहीला, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये दोनों करती है।
शाबाश लैला। यार तुम सुन भी नहीं सकते, मेरी दूसरी क्लास है, मैं भी तो बोल रहा हूँ मुसलसल। जी रैला। जी सर। सर ग्लोबलाइजेशन इस तरह से इफेक्ट करती है कि सर एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलरेडी वुमेन्स को क्योंकि वो लोकल बिजनेसेस पे काम करती हैं, तो जितनी ज़्यादा कल्चर्स इन्वॉल्व होते रहते हैं, उस तरह से वुमेन्स के लोकल बिजनेसेस को एम्पावरमेंट नहीं मिलती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस तरह से उन्हें इफेक्ट पड़ता है। और सर ये पॉजिटिव इस वजह से होती है कि कैपिट वो उन लोगों को मार्केट ब्रॉडर मिल जाती है। नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सॉरी, मेरा ख्याल है मेरे नेट में। दोबारा बताइएगा, ये फीमेल के लिए कैसे सपोर्टिव नहीं है रहीला? सर ये इस तरह से सपोर्टिव नहीं है क्योंकि वुमेन जो काम होता है वो उनकी लोकल मार्केट का होता है। तो ठीक है। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाती है, डिफरेंट कल्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको इतनी ना कंपटीशन उनका बढ़ जाता है और गवर्नमेंट उनको एम्पावर करती नहीं है। तो जितना ज़्यादा जिस तरह से चाइना ज़्यादा ऑफर है प्रोडक्ट्स को चीप प्राइस में, तो जो ये लोग हार्ड जैसे हैंड वूवन काम होता है जो है वो मशीनरीज के थ्रू बना के दे देते हैं, लेकिन वो चीप होता है। ये लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम करते हैं लेकिन उनका एक्सपेंसिव होता है। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा वुमेन को ये नुकसान होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि चीप प्रोडक्ट खरीदना। और जो है लेकिन इसका ये फ़ायदा भी होता है कि ये लोग सिर्फ अपने कंट्री में अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ नहीं बेचते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में उसको बेच सकते हैं। अच्छा, वैसे रहीला ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? फिर ग्लोबलाइजेशन होती है डिफरेंट कंट्रीज जो है मिलके इन्वॉल्व करते हैं, कल्चर शेयर करता है। अच्छा, हमें नहीं पता था। बड़ी अपनी मोटी बात बताई हमें। चलें, थैंक यू वेरी मच रहीला, आई अप्रिशिएट फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ओके, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, ट्रेड फ्लोज, ट्रेड एज अ ग्लोबलाइजिंग फोर्स, कैपिटल फ्लोज, factors of mobility, cultural diffusion, the media as a globalizing force, internet and world wide web. So that is a driving forces of globalization. ठीक है, कि जब आपको एक्सेस हो जाती है और आप जो है वो बॉर्डरलेस सोसाइटी की बात करते हैं। देखिए ना कि आप कहीं पे भी हो, फॉर एग्जांपल इवन इन इफ यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स बट स्टिल यू कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो लिबरलाइजेशन के जो अमेरिका का प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रेड फ्लोज ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, उसी में वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड एज अ कैपिटल ग्लोबलाइजिंग फोर्स, ठीक है, कि जिसके जरिए आपकी जो रिलेशन certain countries you can move freely. Cultural diffusion के जो रहीला है वो, यार आपको आवाज नहीं आ रही? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? अब आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। चले, ओके, अब क्लियर है? शुड आई कंटिन्यू? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि ये सारे उसके ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये फोर्सेस हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, एक बॉर्डरलेस सोसाइटी को बिल्ड करने में। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम इसको जेंडर इश्यूज को देखें अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लेट्स हैव अ लुक कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, powerful forces of globalization have highlighted various gender issues throughout the globe. This is example developing nation, एक ये है।
Globalization has a huge impact on the lives of nations, including Pakistan. What are the impacts of global political economy? ठीक है. Okay, उसके बाद globalization has connected worldwide to a village inequalities across the nations. ठीक है. ये questions आए हुए हैं. Okay, तो जब हम इसको जेंडर इश्यूज की बात करते हैं, तो जेंडर इश्यूज को ये भी रहीला एक्सप्लेन कर रही थी, तो जेंडर पे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट आए हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट जेंडर पे क्या आए हैं? कैन यू एक्सप्लेन? अगर हम जेंडर पे पॉजिटिव चीजों की तरफ देखें, सैयद ज़ीशान. ओके सैयद साहब, पॉजिटिव बताने अभी आपने ज़ीशान साहब. पॉजिटिव इस तरह से आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमीज जो हैं वो बूस्ट होती हैं. सर जैसे नॉर्थ कोरिया का देखें, वो किसी के साथ भी उसने ग्लोबलाइजेशन किसी के साथ भी नहीं की हुई, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी कंपैरेटिवली ब्राज़ील से बहुत थोड़ी है, उसका जीडीपी ब्राज़ील से बहुत थोड़ा है. देयरफॉर अगर पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन में जा रहा है, अब सक्सेसफुली जा रहा है, अभी तक कम्प्लीटली जाने की कोशिश कर रहा है, सर ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि हमारा जीडीपी बेहतर होगा. जीडीपी बेहतर होने से हमारे जेंडर की डिस्पैरिटी कम हो जाएगी. जब जेंडर की डिस्पैरिटी कम हो जाएगी तो सब लोगों को इक्वल रोल्स मिलेंगे, तो औरतें जो हैं वो अपनी पसंद के काम कर सकेंगी, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में जा सकेंगी. अगर कोई औरतें प्राइवेटली काम करना चाह रही तो वो प्राइवेटली भी काम कर सकेंगी. इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव रोल है जेंडर पर. एक्सीलेंट, शाबाश. ये आपने सारा कुछ बताया है ना, वो आपने जस्ट एक चीज बताई है कि उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्लियर होंगी. यार आपको आवाज क्यों नहीं आ रही मुबशिर साहब? इनको तो आ रही है सैयद ज़ीशान साहब को. ये वॉइस का किसी और को भी इशू हो रहा है? अच्छा, अच्छा चलें, ठीक है. ओके, थैंक यू जी ज़ीशान साहब. तो ये जिस तरह ज़ीशान ने अभी फरमाया कि वो बेसिकली उससे आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और वुमेन के लिए जो डिफरेंट एवेन्यूज हैं, दे वुड बी ओपन फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, और जिस तरह रहीला ने बताया कि इन टर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो दैट इज अ वन एस्पेक्ट कि उस तरह उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी. दूसरा जो पॉइंट है वो शहरोज हैज एलैबोरेटेड वेरी वेल कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब आपको आपके राइट्स की अवेयरनेस है. ठीक है, अब अवेयरनेस किस तरह से है कि मसलन आप कहते हो कि दिस इज अ क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम, मैरिटल रेप शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम. ठीक है, इसी तरह आप कहते हो कि ये जो साथ आप कहते हो कि ये जो वनी है, वट्टा सट्टा है, दैट इज आल्सो यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ क्राइम. ठीक है, तो कम से कम जो ऑनर किलिंग है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. तो आपको अपने राइट्स का पता चलता है. ठीक है, आप अपनी लीगल जो प्रोटेक्शन है उसका आपको पता चलता है कि व्हाट आर द इश्यूज इन द वर्ल्ड. तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लेके जा सकते हैं. ठीक है, मसलन डोमेस्टिक वायलेंस, honor killing, rape, wani, marital rape, lack of wages parity, sexual harassment, economic violence, psychological violence, political violence, इनके बारे में awareness आई है. That is a positive impact on gender. Is it clear? Okay, thank you very much. अच्छा, अब आ जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे कि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. डू वी हैव एनी वॉलंटियर हियर? So what are the negative impacts of gender, globalization on gender? कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई भी नहीं करेगा? चले माहम को करते हैं. माहम जी, माहम औरत मास में क्या मसला क्या आपको? माहम Ma'am, can you explain? No? Okay. Okay, अगर हम कहते हैं, चलें सैयद ज़ीशान भी कर लेते हैं. वैसे सॉरी टू से मैं उसको जो है ना औरत मार्च को नेगेटिव नहीं लेता. जी आप बताएं सैयद ज़ीशान. सर ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे बड़ा आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है सर, वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि एनवायरनमेंट हमारी किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है. अब सर एनवायरनमेंट का जो है वो ह्यूमंस के बिहेवियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. जैसे सर हम लोग लेट्स सपोज अगर गर्मियों में रमज़ान आ रहा है और गर्मियों की वजह से हीट वेव आ गई है सर,
लोगों के घरों में डेथ हो रही है सर। सर इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, लेट्स सपोज अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर, उससे लोगों के बिहेवियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि दे गेट मोर एग्रेसिव, एंड व्हेन दे गेट मोर एग्रेसिव इट प्रोवोक्स पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की से क्या होता है कि सर फिर जेंडर रोल्स जो हैं वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं, यानी कि फिर से जो है ना सर, वो मेल जो है वो फीमेल को सब्जुगेट करते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी सर एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली आपकी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है ग्लोबलाइजेशन से। नहीं, तो ये ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, पहले ये तो बताएं ना। सर आपने वही एग्जांपल रमजान की दी है, रमजान को छोड़ें अभी। सर अभी मैं आप आपसे ग्लोबलाइजेशन, सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, ग्लोबलाइजेशन से आपकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होती है, एनवायरनमेंट से आपके ह्यूमन बिहेवियर्स इम्पैक्ट होते हैं, और मुझे ह्यूमन कोई एग्जांपल बिहेवियर्स। बताएं ना। नहीं, वो मुझे आपकी साइंस समझ आ गई है। जी मैं ये सर। कह रहा हूँ कि आप ग्लोबलाइजेशन का एक इशू बताएं कि उस इशू से ये इन्वायरमेंट खराब हो गया है। सर जैसे इंडस्ट्रीज हैं इतने ऑयल स्पिल्स करती हैं सर सीज में जाके, ठीक है, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है। और जितने भी सर नहीं, वो ग्रीन हाउस ज्यादा मेरा गैस। ख्याल है आप थोड़ा सा उसको बड़ा टेक्निकल लेके गए हैं। वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है वैसे। वो आप कर सकते हैं कि ओवरऑल आपकी जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप इंडिविजुअल की हेल्थ की बात करें तो दैट जी मेक्स सर। सेंस। ठीक ठीक है है कि सर। जो ग्लोबलाइजेशन है वो ज्यादा कंपटीशन की तरफ आ गया है, उसमें वो चीप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं रादर देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब चीप प्रोडक्ट होते हैं, तो जब ह्यूमंस उनको कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से उनके हेल्थ के इश्यूज आए हैं। अब उस तरह से तो उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ठीक जी है, सर। इसके अलावा कोई और पॉइंट है आपके पास जिशान? नहीं सर, और नहीं है। चले आनी, थैंक यू वेरी मच जिशान, आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जिशान। ओके, उसके बाद अगर हम इसको जी जाम जाम क्या बात है जी जाम साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, मेरे ख्याल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इट्स ओके। ओके, चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम। जी जी जाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। सर इसमें ये होता है वो जब हमारा मतलब ग्लोबलाइजेशन से हमारा फैमिली सिस्टम के ऊपर एक तो इम्पेक्ट पड़ता है, और दूसरा जो कल्चर शेयरिंग होती है, और उसके हवाले से ना जो हमारे रिलीजियस और यहाँ का जो ट्रेडिशन होता यार है मुझे सॉरी, मैं वो आपको इफेक्ट। इंटरप्ट कर रहा हूँ। जाम साहब, आप ये वॉशरूम में बात कर रहे हैं, ये आपकी आवाज जो है वो इतनी वो क्यों कर रही है? सर ये हैंड फ्री लगाए हुए हैं, शायद लैपटॉप का कोई इशू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं, नहीं, जरा इसको एक्सप्लेन करें यार। मेरा ख्याल है कि जाम आपके जो है ना बिल्कुल वो वॉइस ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। सर। ठीक है, उसमें वो सही हमें से समझ नहीं आ रही। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक पॉइंट है जाम साहब का, वो वेरी वैलिड, कि जाम साहब ने जो कहा कि फैमिली सिस्टम पे उसका जो इम्पैक्ट आता है, आई अप्रिशिएट हिम। रीजन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में जो एक तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जो डेवलपिंग कंट्री पे आता है, वो ये आता है कि आपके लिए जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आपके लिए लो पेड जॉब्स आती हैं, आप हाई पेड जॉब्स आपके लिए ऑफर नहीं होती। कि अगर गोरा पाकिस्तान में आएगा तो वो हाई पेड जॉब्स के लिए आएगा, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आप लो पेड जॉब्स पे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसने डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। ओके, अगर आप फिलीपींस की एग्जांपल ले लें तो उनकी जो 80% उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो लो पेड जॉब से आते हैं। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो एक्सपेट्रिएट्स हैं दे आर इन सऊदी अरेबिया, अराउंड 3 मिलियन। उसमें से जो 90% हैं अगेन दे आर वर्किंग ऑन लो पेड जॉब्स। तो जो इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है वो लो पेड जॉब्स करता है। फिर जो नेक्स्ट इसका जो इशू आता है कि क्योंकि जो अमेरिका को पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं चाहिए, आपको अमेरिका की नेशनैलिटी चाहिए, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्लोबलाइजेशन का आता है कि वो नेचुरलाइजेशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज के मेंबर्स हैं वो नेचुरलाइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिलीज को विजिट नहीं कर पाते। और उसके बाद जो इलीगल ट्रैवलिंग की आप बात करें या इलीगल आप उसके लिए बात कर लें, इलीगल मूवमेंट, कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोग जो हैं वो इलीगली मूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से समटाइम दे आर गोइंग टू बी किल्ड एज वेल ऑन बॉर्डर्स।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो अनस्किल्ड लेबर पे भी आता है, कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो इनका जब आप ये कर लें कि उसमें करते हैं, इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो लो पेड और मेरा ख्याल हैंड्स के लेबर दैट इज ऑलमोस्ट दैट रिमेन्स द सेम। ओके, उसके बाद जो एक इशू आ जाता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आता है, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कौन से इंडिविजुअल्स जाएंगे, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज के जाएंगे ना, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, अमेरिकन की तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ओके, तो दैट इज अनदर इशू। उसके बाद जो एक इशू आता है कल्चर में, वो अच्छा चलो वो हम बाद में करते हैं आरिफा, जो कल्चर है अभी हम जेंडर पे देख रहे हैं ना, तो वो हम बाद में उसको कल्चरल इम्पैक्ट पे देखते हैं। सो दीज आर द सम इश्यूज जो कि हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनको फेस कर पाते हैं। हम कहते हैं कि जी कि जो स्टिल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो डेवलप और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के जो इश्यूज हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी टेकन ड्यू अटेंशन एट द सेम टाइम, ठीक है। और इसमें जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में जो उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिस तरह उनकी एब्रोगेशन होती है, या पैलेस्टाइनियन जो वुमेन है उनकी जो होती है, इसी तरह हम कहें कि किसी और की होंगी कंट्री में, तो ऑब्वियसली देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस, तो उसमें उनको इक्वल से नहीं है, तो पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो दे आर गिवन मोर वेटेज हियर। ओके, जब हम कल्चरल इश्यूज की बात करते हैं तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कल्चर पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कल्चर पे किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मसलन ईटिंग पैटर्न्स, आपके फास्ट फूड कल्चर नाउ इज अवेलेबल, ड्रेसिंग पैटर्न्स यूनिसेक्स जो अवेलेबल हैं, यूनिसेक्स क्लोथ्स, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो अपेयरेंस है कि इन द लाइफस्टाइल, फैमिली पैटर्न्स, मैरिज पैटर्न्स, कल्चर डिफिजन, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप कर लेंगे। पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स आपके कल्चर पे किस तरह से आए हैं। नेगेटिव ये है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो उस तरह से नहीं है, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी मॉलिश हुई हैं, ठीक है। और इसमें आप कौन सी बात करेंगे आपके कल्चर्स पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और इसमें क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक नेगेटिव इम्पैक्ट्स में। इंडिविजुअलिटी इस तरह से होगा ना कि आप, पहले होता था कि लोग दे वर कंसिडर्ड मोर प्योर इन टर्म ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर एज वेल, but now earlier family they were going to spend more time with their family members, but now even you are going to meet with one another after so many years, still whenever you are going to meet maybe you are going to get engaged in your own social applications, तो वो that is a negative impact कि आपके जो bondage है वो उस तरह से, एक तरफ से तो बॉर्डर खत्म हो गए हैं, दूसरी तरफ जो आपका जो रिलेशन है विद द इंडिविजुअल वो वीक हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप ये कह लें कि आपका जो सेपरेशन वैसे पॉजिटिव भी कॉन्टेक्स्ट में भी है और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि आप पे अगर अट्रॉसिटीज हो रही हैं इलीगली, और ऑब्वियसली उससे तो बेहतर है कि आप डिवोर्स या सेपरेशन को सपोर्ट करें, लेकिन अगर उसको जस्ट फॉर सेक ऑफ फन लें और आप उसको जो है इंडिविजुअल्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के लिए डिवोर्स करें, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अलार्मिंग। So that is a negative impact as well. और suicide rate की आप बात कर लें due to such separation that is getting high, तो उस context में वो negative impact में आ जाएगा, ठीक है। Okay, xenophobia. Okay, xenophobia means कि fear of feeling being foreigner, ठीक है। और ethnocentrism means cultural superiority, और इसमें जो है xenocentrism भी आता है। xenocentrism means जब आप अपने कल्चर को इन्फीरियर फील करते हैं अगेंस्ट फॉरेन कल्चर एंड सो ऑन। क्लियर? सो दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन सो फार? इज एवरीथिंग फाइन? चलें, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर, with you chapter number 3 or 4. Just hold on. ओके, चैप्टर जो 3 है, ठीक है, आपने लिखा वैसा टाइम हो गया है 10 बजे से।
अच्छा, अल्लाह हाफिज कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज मैं 10 मिनट आपके ऊपर ही लूंगा, टेंशन ना लें आप। मुझे फोकस ऑन वुमेन स्टडीज। यार ये आपका कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि हम वुमेन स्टडीज पे क्यों फोकस करते हैं। उसकी रीजन ये है कि वुमेन पे वायलेंस ज्यादा होता है। आप देखें ना, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, सो मेन एंड वुमेन दे आर ऑलमोस्ट, यू कैन से, हाफ इन नंबर। तो क्योंकि वुमेन का नंबर ज्यादा है, उनके अगेंस्ट केसेस ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं, जिसकी बेसिस पे वुमेन को ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। आज आप 5 मिनट ले लीजिएगा क्लास उसकी, यूएस हिस्ट्री की। ठीक, ओके। जब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो जो चैप्टर 3 है, दैट रिलेट्स विद द फेमिनिज्म थ्योरीज। ठीक है, फेमिनिज्म थ्योरीज एंड फैक्टर्स। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो आपका जो सिलेबस है उसमें से कुछ लड़कियों ने इफ्तारी बनानी है। ये देखें, भट्ट साहब लोग एक ही काम में खानदान, बस और कोई काम नहीं। चले भट्ट साहब, अच्छी बात है। भट्ट साहब को रेसलिंग भी कर दे कि कोई नहीं। चले, ओके जी, भट्ट साहब ने कह दिया तो मेरा ख्याल, चले हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम भट्ट साहब का जो, भट्ट साहब की सजेशन जो है ना, उसको वेट ही देते हैं। चले, थैंक यू। अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन है तो ठीक है। Do you have any general question? I should have wind up the meeting. Any question? Okay. Okay, sure, no worries. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.